Hello, good afternoon student. My name is Hiral Raval. Today's date 7 December 2020. Standard 9, subject Science. Chapter number 11, Work and Energy. In previous lecture, we have studied the definitions of work. Then we have also studied work done a constant force. We do activity 11.2 and we solve example 11.1 and 11.2. ओके, ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने किए हैं. ओके, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक एनर्जी. वी हैव परफॉर्म एक्टिविटी 11.5 and we have concluded the forms of energy. There are various types of energy. So let's start. First, kinetic energy. Activity 11.6. Take a heavy ball. Drop it on a thick bed of sand. A wet bed of sand would be better. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 cm. The ball creates a depressions. Repeat this activity from heights of 50 cm, 1 meter and 1.5 meter. Ensure that all the depressions are distinctly visible. Mark the depressions to indicate the height from which the ball was dropped. Compare their depths. Which one of them is deepest? कौन सी जो है डेप्थ एकदम डीपेस्ट है. विच वन इज़ शैलोएस्ट? कौन सा जो है वो शैलोएस्ट जाएगा. वाई? वॉट हैज़ कॉस्ट द बॉल टू मेक अ डीपर डेप्थ? डिस्कस एंड एनालाइज. हमें उसको क्या करना है? डिस्कस करना है. अरे ओके, हमें उसको डिस्कस करना है. Activity 11.7. Set up the apparatus as shown in figure 11.5. Place a wooden block of known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance. Place a known mass on the pan so that the trolley starts moving. The trolley moves forward and hits the wooden block. Fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. हमें ऐसे पूरी सिचुएशंस को करना है कि ट्रॉली जो है वो ब्रेक करके ब्लॉक को जो है वो हिट्स करके नीचे गिरे. द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड. नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक by the trolley as the block has gained energy. From where does this energy come? ये जो energy है वो कहाँ से आती है? Repeat this activity by increasing the mass on the pan. In which case is the displacement more? कौन से केस में displacement जो है वो ज़्यादा होता है वो भी हमें देखना है. In which case is the work done more? कौन से एक स्टेज में वर्क ज़्यादा होता है वो भी हमें नोट डाउन करना है. इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पोजेसेस एनर्जी. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. जो चीज़ें स्पीड से आती है उसमें क्या होता है
जो चीज़ें स्पीड से आती है, स्टोन की बात है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है। हाउ डज़ अ बुलेट पियर्स द टारगेट? कोई भी बुलेट है वो अपने टारगेट को कैसे अचीव करती है कि बुलेट को हम प्रेशर से, उसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाउ डज़ द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल? Objects in motions possess energy. We call this energy kinetic energy. ये जो energy है वो kinetic energy है. A falling coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. काइनेटिक एनर्जी है वो जो एनर्जी है वो मोशन से, है ना, मूविंग एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ई के से डिस्क्राइब करते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड. How much energy is possessed by a moving body by virtue of its motions? By definition, we say that the kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it now be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of its displacement. From equation 11.1, the work done W is F S. वर्क जो है उसका इक्वेशन होगा F into S. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let A be the accelerations produced. In section 8.5, we studied three equations form of motions. The relations connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform accelerations a and the displacement s. So v square minus u square is equal to 2as. This gives S is equal to v square minus u square upon 2a. From sections 9.4, we know F is equal to ma. Thus, using equations 11.2 in equation 11.1, we can write the work done by the force F as W is equal to ma is equal to v square minus u square upon 2a, और W is equal to 1 by 2 into m v square minus u square. If the object is starting from its stationary position, that is u equal to 0, then W is equal to 1 by 2 mv square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. Suppose if u is equal to 0, the work done will be 1 by 2 mv square. Thus, the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is Ek is equal to 1 by 2 mv square. So here the equations of kinetic energy. This is the equation of kinetic energy. Ek
This is the equation of kinetic energy. Ek is equal to 1/2 mv square. Okay. Here one example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हियर मास इज गिवन एंड वेलोसिटी इज गिवन. ओके, दोनों चीज़ यहाँ पे गिवन है. ओके, दिस इज अ सिंपल वी यूज इक्वेशंस एंड गेट आंसर. m is equal to 15 kg and velocity v is equal to 4 meter per second. So ek is equal to 1/2 mv square. Okay, मैं भी आपको ऐसे करके दिखाती हूँ. 1/2 mv square. So here 2 2s are 4. Okay, 15 2s are 30. 30 4s are 120. So answer is 120 joule. So here Ek is equal to 120 joule. It's a very easy example. Example 11.4. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? Okay, this is the solution. Mass of the car m is equal to 1500 kg. Initial velocity of car u is equal to 30 km per hour. So 30 into 1000 upon 60 into 60 मीन्स कि हमें 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है. ओके, तो ऑलवेज़ ये याद रखने का, किलोमीटर को मीटर पर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से हमें उसको है डिवाइड करना है. एक ज़ीरो कट, 12 3s are 36. ओके, 4 3s are 12, 25 4s are 100. सो हमें क्या करना पड़ेगा? 25 डिवाइडेड बाय 3. 3 8s are 24, 1.3 3s are 9, 1 3 3s are 9. So 8.33. Okay, 8.33 meter per second. Similarly, the final velocity of the car v is equal to 60 km per hour. और हम ऐसा उसको वापस उसको किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ डायरेक्ट दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करने का. 60 इंटू 1000 अपन 3600 से करना है ना, तो हम 60 इंटू 60 लिख सकते हैं. ओके, फर्स्ट 60 60 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया. ओके, 3 2s are 6, 50 2s are 100. तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 50 डिवाइडेड बाय 3. हियर 3 1s are 3, 2, 3 6s are 18. यहाँ पे 2 0, 3 6s are 18. सो हमें आंसर क्या मिलेगा? 16.6667. ओके, सो हियर 16.67, उसको हम 16.7 भी लिख सकते हैं. ओके, तो हमें u और v जो है वो मिल गए हैं. देन अप्लाई द इक्वेशन. Ek इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. EKI किया, इनिशियल के लिए किया और फाइनल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग किया है. ओके, ये जो है वो नोटबुक में आप अच्छे से जो है उसकी कैलकुलेशन करना. यूजिंग द इक्वेशंस वी हैव राइट 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m तो दोनों के लिए सेम है 1500 kg. बट u हमें कितना मिला है? 8.33. तो यहाँ 8.33 इंटू 8.33 2 टाइम्स करना है, तो हमें ये आंसर मिलेगा. दैन यहाँ पे हमने द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार लिया है. ओके, तो यहाँ पे हमें मिला है EKF, जिसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इसका हमें ये जो आंसर मिलेगा, दस द वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कितना वर्क हुआ है? तो फाइनल एनर्जी को हमें जो है वो इनिशियल एनर्जी से क्या करना है? उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हियर इज़ द आंसर.
दिस इज़ द आंसर। ओके, क्या करना है, ई के एफ फाइनल माइनस इनिशियल ई के आई। ओके, हियर अगेन इन बिल्ड क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपको अपने साइंस के नोटबुक में लिखने हैं। सो 11.2.3 पोटेंशियल एनर्जी, हियर अनदर टाइप ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 11.8, टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड पुल from the other. The band stretches. Release the band at one of the ends. What happens? क्या होता है वो हमें देखना है। The band will tend to regain its original length. Obviously, the band had acquired energy in its stretched position. How did it acquire energy when stretched? कैसे वो stretch होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे 11.9 है, टेक अ स्लिंकी एज शोन इन बिलो। स्लिंकी मीन्स के स्प्रिंग के जैसा। आस्क द फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसको एंड्स को ऐसे पकड़े। यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड। नाउ यू रिलीज द स्लिंकी, फिर उसको छोड़ देना है। व्हाट हैपन, क्या होगा, तो अपनी पोजीशन से वो वापस वो ले लेगा, है ना। जिसके स्पाइरल स्प्रिंग में ऐसा ही होता है। सपोज स्प्रिंग जो होती है, दिस इज़ अ स्प्रिंग, ओके, उसको हमने रिजिड सपोर्ट के साथ सपोज हैंग किया है। ओके, तो यहाँ से आप स्ट्रेच करो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बट हम उसको छोड़ दें तो अगेन जो उसकी पोजीशन है, अगेन जो उसकी लेंथ है वो वापस आ जाती है। व्हाट हैपन, हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच। वुड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन इट इज़ compressed? एक्टिविटी 11.10, टेक अ टॉय कार, एक टॉय कार लेना है। विंड इट यूजिंग इट्स की, उसको की उसके अंदर की उसकी विंड मीन्स की ऐसे की घुमानी है, चाबी घुमानी है। प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, और कार को जो है वो ग्राउंड पे हमें रख देना है। डिड इट मूव, क्या वो मूव होगी, यस होगी। फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, उसमें एनर्जी कहाँ से आई, तो हमें जो विंड द की को यूज़ किया था उसकी वजह से उसमें एनर्जी आई है। ओके, डज द एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वेडिंग्स, ऑब्वियसली, है ना। जितने नंबर ज़्यादा करोगे उतनी कार ज़्यादा चलेगी, बट एक टाइम आता है कि उसकी कैपेसिटी आ जाती है, उससे ज़्यादा हम जो चाबी है वो नहीं भर सकते। ओके, आप जो खिलौने पहले, अभी तो रिमोट वाले खिलौने आने लगे, बट पहले ऐसे खिलौने मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिलते थे जिसमें ऐसी की थी, कीज़ यूज़ करनी और कीज़ को हमें ब्लॉक करना है। बहुत सारे ऐसे खिलौने वहाँ पे अवेलेबल थे। ओके, बहुत सारे खिलौने आप ऐसे जो है बचपन में खेलो भी होंगे, जिससे क्या होता है, हम स्प्रिंग को जो है वो विंड्स करते हैं और अपने आप जो ब्लोइंग जो है वो एनर्जी होती है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है उसमें हमें ये पता चलता है। ओके, नाउ वी परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 11.11, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट। एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सर्टेन हाइट से है फेंकना है। सपोज दिस इज़ द हाइट। ओके, यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें यहाँ से जो है वो फेंकना है। लिफ्ट द ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क मीन्स के ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। इट बिगिन्स टू फॉल व्हेन रिलीज्ड, उसको हम छोड़ देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, है ना, तब तक तो ऊपर ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ अक्वायर्ड सम एनर्जी, उससे ये पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पकड़ते हैं उसमें एनर्जी गेन होती है। इफ़ रेज्ड टू ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस पोजेस मोर एनर्जी। फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी, उसमें कहाँ से एनर्जी आती है। थिंक एंड डिस्कस, वो हमें डिस्कस करना है। इन द अबव सिचुएशन द एनर्जी gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object.
You transfer energy when you stretch a rubber band. सपोज़ रबर बैंड हमारे पास हो, उसको हम स्ट्रेच करें तो उसमें से हमें एनर्जी मिलती है. The energy transferred to the band is its potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside it stored as potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its positions or configurations. उससे जो होती है वो एनर्जी उसमें जो है वो गेन होती है. ओके, दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही. थैंक